सो इनकलाब जिंदाबाद मेरे भाइयों दोस्तों फ्रेंड्स एस्पिरेंट्स। सो प्रीलिम में रह गई है अब थोड़ी सी दूरी। आज भी पकड़ के रखना उम्मीद की डोरी, बिकॉज डोंट लूज होप इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी. So, five more MCQs with solutions today for environment and geography, sir and ma'am. Let's quickly go into the questions. So, consider the following statements about Northern River Terrapin. सर ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रही है. स्पीशीज एंड स्पीशीज से इन्वायरमेंट में सवाल आते ही आते हैं. सो नॉर्दर्न रिवर टेरापिन, it is a herbivorous turtle, number one. Number two, it prefers salty water. So correct बताना है सर, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन. आप स्टॉप करके रीड करके सोच के कमेंट कर दो आंसर, और नॉट मोर देन 30 सेकेंड्स पर क्वेश्चन लगाने हैं सर प्रीलिम पास करने के लिए. ज्यादा नहीं लगाने, नॉट मोर देन 30 सेकेंड्स. राइट. सो सेकेंड क्वेश्चन फॉर द डे, इंटरनेशनल कार्बन एक्शन पार्टनरशिप के बारे में सर. दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर रेपिटेटिवली कमिंग अप इन क्वेश्चंस. सो इंटरनेशनल कार्बन एक्शन पार्टनरशिप ICAP, was it founded in 2015 and is India a member? Is India a founding member? So इनकरेक्ट बताना है सर, इसमें करेक्ट नहीं, ये गलती नहीं करनी पेपर में. इनबॉक्स कर लेना करेक्ट इनकरेक्ट को, फिर आंसर निकालना. So tell me your answer in the comment section. Right, so third question for the day, consider the following about International Seabed Authority. So ISBA के बारे में सवाल लास्ट ईयर भी आया था, इस साल भी एक्सपेक्टेड है, because there is a conflict going upon in Ukraine and Russia, and the divisions of sea according to law of seas, right? As you know, continental shelf, territorial sea, all these concepts. नहीं पता तो comment your doubts, I'll make a dedicated video on it. Anything you want me to explain via a video, simplify via video, please comment, I'll explain. So International Seabed Authority, sir, it regulates mineral operations in international waters. It shares its secretariat with United Nations General Assembly. Again, incorrect बताना है sir and ma'am. Comment section में बता देना मुझे नीचे. I'll tell you the answers after the 5 MCQs. So the river flows and originates in Aravallis in Rajasthan, then flows westwards and meets Gulf of Khambat. So sir, ये नदी है जो बह रही है टुवर्ड्स वेस्ट एंड ओरिजिनेट कर रही है अरावली से और जाके मिल रही है गल्फ ऑफ खम्बत से. कौन सी नदी है सर ये? माही, लूनी, साबरमती या सोन? टेल मी इन द कमेंट सर एंड मैम, कमेंट सेक्शन. सो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विंड्स ऑन अर्थ. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग नाम रटते रह जाते हैं. They ask you such a simple question that easterly winds dominate, on an average obviously, easterly winds dominate the flow pattern across the poles, westerly flow dominates middle latitude. So sir, correct बताना है, 1 2 both none. Again, stop it if you want it, pause it, comment your answers or your doubts if any. So these were the MCQs. Let's look at the explanations and answers. So very happily about the Northern River Terrapin, sir and ma'am. Herbivorous नहीं सर, ओमनीवोरस होता है. ज्यादातर टर्टल्स आपको ओमनीवोरस ही मिलेंगे, तो ध्यान से आंसर करना. सो नॉर्दर्न रिवर टेरापिन इज ओमनीवोरस एंड इट प्रेफर्स नॉट सॉल्टी बट फ्रेश वाटर. कभी कभी एग लेइंग के लिए it goes to the salty water but quickly comes back to fresh water, right? So answer here becomes, first statement is incorrect, second statement is incorrect, so neither 1 nor 2 is correct, right? So about the terrapin, sir, omnivorous hai, taking water side plants and small animals. Obviously it prefers the fresh water habitat, right? So about the International Carbon Action Partnership, sir and ma'am, second question. 2015 में नहीं, 2007 में फाउंड हुई थी ये, एंड इंडिया इज नॉट इवन अ मेंबर. फाउंडिंग मेंबर तो छोड़ो. सो बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, पर पता होना चाहिए हमें ICAP के बारे में.
सो 2007 में फाउंड की गई थी, 15 से ज्यादा गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स थे। अब अमेरिका, यूरोपियन नेशंस बहुत सारे हैं, बट इंडिया इज नॉट अ मेंबर। प्लीज प्लीज रिमेंबर दिस, आईसीएपी का इंडिया मेंबर नहीं है, राइट। सो नेक्स्ट इज अबाउट इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। इट रेगुलेट्स मिनरल ऑपरेशंस इन इंटरनेशनल वाटर्स, करेक्ट। It shares its secretariat with UNGA. No, it is an independent autonomous body with its own secretariat. So incorrect बताना है second statement, that is 2 only is the right answer. Incorrect second statement है. So International Seabed Authority कहाँ पे based है जी? Kingston, Jamaica में based है. This has been in news. This area has been in news. Why? Tell me in the comment section, sir. सो जमाइका में बेस्ड है जी, एंड यूएन क्लॉज, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के अंडर बनाई गई थी। 1994 में एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट किया गया। और सर आईएसए का सीबेड अथॉरिटी का डबल रोल है। डबल रोल क्या है सर? पिक्चर में डबल रोल नहीं है, सरकार में डबल रोल है, इंटरनेशनल सिनेरियो में डबल रोल है। व्हाट इज दैट डबल रोल? दैट डबल रोल इज कमर्शियली, इकोनॉमिकली ये माइनिंग को देखता है सर, माइनिंग को रेगुलेट करता है। एंड इन्वायरमेंट के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से माइनिंग हो गया, इन्वायरमेंट के हिसाब से सी बेड की सेहत को देखता है सर, सी बेड की सेहत को, इन्वायरमेंटल हेल्थ ऑफ द एरिया, प्राइमरली इन waters beyond national jurisdictions. I hope we know what are territorial waters, what is a contiguous zone, what are international waters. If we don't know, comment your doubts. I'll make a separate video on that or hold a live session. So second last question tha sir, the river flows and originates in Aravallis, then flows westwards and meets Gulf of Khambat. One of the major west flowing rivers in India, साबरमती। साबरमती के साथ में, साबरमती के पास में कौन साहब रहने वाले थे? वेरी वेरी फेमस। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट। सो साबरमती रिवर इज वन ऑफ द मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन इंडिया. इट ओरिजिनेट्स इन अरावली, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान एंड मीट्स गल्फ ऑफ खंबत. बहुत कम रिवर्स हैं इंडिया में जो वेस्ट फ्लो करती हैं, नहीं तो इंडिया का टिल्ट ईस्टवर्ड है सर. ये जो मैप बनाते हैं हम, इसका टिल्ट ईस्टवर्ड है. सारी रिवर्स प्राइमरीली इधर फ्लो करती हैं, डिवीजन बहुत पास है, राइट. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर, साबरमती इज वन ऑफ द मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, मीट्स द अरेबियन सी. Right, जी, consider the following about winds on earth. Easterly winds dominate flow pattern across poles on an average, yes. Westerly flows dominates middle latitude, yes. So both these statements are correct. Learnings, excuse me, learnings for the day are sir, poles पे अगर हम देखें तो on an average easterly flow of winds dominates. Mid latitudes पे देखें तो westerly flow dominates. अगेन सब ट्रॉपिक्स वाले एरिया में भी वेस्टर्ली डोमिनेट्स, एंड ट्रॉपिकल एरियाज में सर द ईस्टर्ली फ्लो डोमिनेट्स. व्हाट डू आई मीन बाय डोमिनेट? कि ऑल थ्रू आउट द ईयर द मेजर विंड फ्लोइंग, एज यू माइट बी नोइंग सर, विंड का नाम हम वहां से रखते हैं जहां से वो आ रही है. वेस्टर्ली विंड है मतलब वेस्ट की तरफ से आ रही है, ईस्टर्ली विंड है मतलब ईस्ट की तरफ से आ रही है. सो पोल्स में ज्यादातर ईस्ट की तरफ से ईस्टर्ली चलती है, मिड लैटिट्यूड में वेस्टर्ली, सब ट्रॉपिक में अगेन वेस्टर्ली, ट्रॉपिक्स में ईस्टर्ली. सो डोमिनेंट पैटर्न बर्ड्स आई व्यू, दैट्स व्हाट यूपीएससी वांट्स फ्रॉम यू, द बर्ड्स आई व्यू, राइट, द बर्ड्स आई व्यू. So don't worry, we'll be covering these kind of MCQs every day, every week. You know the timetable. So please keep on supporting, please keep on commenting. Thank you so much for watching. So एक बार जाते जाते फिर भी साथ ना छोड़ते हुए साथ में बोलते हैं, इनकलाब जिंदाबाद.